So, hello students. In our previous class, we had a discussion about the basic introduction of acid, base and salt, class 10, chapter 2nd. In this class, we will move further ahead of that. Now, before moving ahead, let us have a quick revision what we have learned in the previous class. Okay. So, what we have learned is the definition of acid, base and salt with two examples each. Apart from that, the definition of indicator with types and examples. Okay. So, I want you to recall yourself what is an acid, what is a base and what is a salt with having two examples each. So what are the acids? The acids are the substance which gives H plus ion in a solution, so that are called acids. Okay. The examples of acids are acetic acid, sulfuric acid, nitric acid, malic acid, etc. Okay. Similarly, what are the bases? The substances which gives OH minus ion in a solution are called bases. Okay. The examples of bases are sodium hydroxide, sodium bicarbonate, sodium carbonate and all the other hydroxides are the examples of bases. What is a salt? A salt is a product of the reaction of an acid and base. When an acid reacts with a base, it always results giving a salt with elimination of water. Okay. So, salt, you can say salt is a neutral compound which is produced by the reaction of acid and base. Okay. Examples of salts are sodium chloride, sodium sulfate, etc. Now, the next thing we had learned was the definition of indicator, its types and examples. Okay. So, what is an indicator? So, recall it yourself what we had learned about the indicator. An indicator is something which helps us to differentiate between an acid and a base. Okay. Is it clear? So, these are of two types, the natural indicator and the synthetic indicators or artificial indicators. Okay. So, what are the natural indicators? Which are already present in the nature, which we don't have to make in the laboratories, are known as natural indicators. The examples of natural indicators were turmeric, okay, apart from that hibiscus petals and so many examples were there. And what are the synthetic indicators? The man-made indicators which are made in the laboratories with the chemicals, with the help of chemicals, are known as synthetic or artificial indicators. The examples of artificial indicators are phenoxylene, methyl orange, etc. So, is it clear? I hope all these are clear. For the Hindi medium students, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था जो कि था जनरल इंट्रोडक्शन अम्ल और क्षार के बारे में, उसके अलावा हमने सूचक के बारे में थोड़ा बहुत बात की थी. तो अम्ल और क्षार और उसके अलावा लवण की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल्स आपको मेरे हिसाब से आपको याद होने चाहिए क्योंकि आपने पढ़ चुका है ये. तो अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं. जैसे कि उदाहरण है एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल एंड बहुत सारे और. मैलिक अम्ल बेसिकली किस में पाया जाता है? इट इज फाउंड इन सेब, एप्पल में पाया जाता है. उसके अलावा हमने और एग्जाम्पल्स लिखे हुए थे. जस्ट टर्न ऑन द पेज एंड जस्ट सी इट. नाउ बेसिस, वे पदार्थ, क्षार, वे पदार्थ जो कि जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं. एग्जाम्पल्स थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे. ओके. लवण क्या होते हैं? जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो एक जो है न्यूट्रल कंपाउंड बनता है या जिसे कहते हैं यौगिक बनेगा जो कि न्यूट्रल नेचर का होगा और उसके साथ जल भी बनता है. तो जो लवण बनता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से, आप बेसिकली उसको लवण की संज्ञा देते हैं या जो यौगिक बनता है उसको आप लवण की संज्ञा देते हैं. द डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटर, सूचक के बारे में मैंने पढ़ा कि
हम लोगों ने पहले जब डेफिनेशन पढ़ा था या पहले परिभाषा पढ़ी थी, जो सबसे आदम या पुराने ज़माने में जो हम पढ़ते थे, अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। तो दैट आइडिया वॉज नॉट वर्किंग, ओके, फॉर ऑल द एसिड्स एंड बेस इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया, ओके। तो हम लोगों ने क्या किया, एक दूसरा तरीका निकाला टेस्ट करने का, पता करने का कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो वो सारी चीज़ें जो ये इस काम को करने के लिए हमको सहयोग देती हैं, या वो सारे पदार्थ जिससे हमको पता चलता है कि कोई चीज़ अम्ल या क्षार है, उन्हें कहा जाता है इंडिकेटर या सूचक, ओके। सूचक दो प्रकार के होते हैं, जो कि है प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो ऑलरेडी प्रकृति में विद्यमान है, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, और जिसे हम बनाते हैं खुद प्रयोगशाला में, वो कहलाते हैं क्या, कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक के मुख्य उदाहरण अगर आप देखें तो जो गुड़हल के पत्ते हैं वो हैं, उसके अलावा आप देखेंगे जो लिटमस पेपर है वो भी है, उसके अलावा जो बोलना चाहिए हल्दी, ओके। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज टर्मरिक, जो टर्मरिक है वो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। नाउ उसके अलावा कृत्रिम जो है, कृत्रिम सूचक के मुख्य उदाहरण जो हैं वो हैं आपका मैथिल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन, ओके। सो these are clear. The next thing which is given in your book is an activity in which there is a practical based on the change of color of indicators given as phenolphthalein, methyl orange and hibiscus petals, okay। तो अगला जो आपका जो बुक में आपका जो एक्टिविटी दिया गया है वो है कि इसमें आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जिसमें आपको 3 स्लाइड्स दिए जाएंगे। उन 3 स्लाइड्स में आपको सबसे पहले स्लाइड में फेनोप्थिलीन की 3 बूंदें जो हैं वो आपको क्या करनी है, लेनी है, और उसमें एसिड बेस टेस्ट करना है। पहली बूंद में कोई एक एसिड डाल के टेस्ट करेंगे, फिर दूसरी वाली बूंद में कोई बेस डाल के टेस्ट करेंगे, और तीसरा वाले बूंद को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, वो उसका नेचुरल कलर जो है वो शो करेगा। सो व्हाट डू वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू टेक स्लाइड्स, 3 स्लाइड्स। In first slides we have to drop some drops of phenolphthalein, okay, the 3 drops will be there. Similarly in the second slide there will be 3 drops of methyl orange, and in the third slide there will be 3 drops of hibiscus petal juice, okay, and in that 3 drops we have to add an acid, as in your book it is given as hydrochloric acid, HCl. As a base there is NaOH, okay. So right now as it is, you are in a lockdown period, so it is not possible that you would be having sodium hydroxide and hydrochloric acid at your home. So आप अभी आपके पास घर में तो HCl नहीं होगा, आपके घर में सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि आप टर्मरिक का सोल्यूशन बनाइए, है ना। यू हैव टू मेक द टर्मरिक सोल्यूशन एंड टेक 3 ड्रॉप्स। अगर आपके पास स्लाइड है तो भी अच्छी बात है, अगर स्लाइड नहीं है तो भी कोई बात नहीं, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास में भी आप ले सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास में इनकी 3 बूंदें लेने के बाद पहले में आपको एक एसिड ऐड करना है, जो कि आपको बुक में बोला गया है कि आपको HCl ऐड करना है। सो इफ यू डोंट हैव द HCl इन योर होम, सो व्हाट डू यू हैव टू डू, टेक अ लेमन जूस, ओके। आपको क्या करना है, नींबू का रस जो है पहले बूंद में आप ऐड करके देखिए कि किस तरीके की चेंज आ रही है। दूसरे में आप क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको ऐड करना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट सोल्यूशन जो साबुन का पानी है, थोड़ा सा साबुन लेके उसको थोड़ा सा पानी में घोल लीजिए, और जो टर्मरिक का दूसरा ड्रॉप है उसमें आप ये डाल के देखिए, ओके। और तीसरे ड्रॉप को एज इट इज रहने देंगे, ओके। तो व्हाट हैपन्स, क्या होता है कि जब आप एसिड ऐड करते हैं टर्मरिक के साथ, तो देयर विल बी नो चेंज इन कलर। जो टर्मरिक का येलो कलर है वो येलो ही रहेगा, बट व्हेन यू ऐड बेस, टर्मरिक चेंजेस इट्स कलर। जो हल्दी जो है वो अपना कलर चेंज करती है, तो ये जो है येलो से हो जाता है रेड। जब आप उसमें साबुन का पानी डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा रेड। एंड दिस प्रैक्टिकल वी हैव एक्चुअली विटनेस सो मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ। हमने ये प्रैक्टिकल कई बार देखा है कि जब हम शादी पार्टियों में होते हैं और जब भी कोई मसालेदार चीज़ें खा रहे होते हैं और वो चीज़ हमारे शर्ट या कपड़ों पे गिर जाती है, तो उसके बाद क्या करते हैं, जब हम साबुन से धोते हैं तो पहले उसका कलर जो होगा वो क्या है, जब आप उस पर साबुन रगड़ेंगे तो येलो से वो हो जाता है रेड पहले, ठीक है। जब तक वो दाग पूरी तरीके से नहीं निकलेगा तो पहले from yellow its color changes to red. So this is the part of indicator.
Okay, so in this way you can know कि something is a acid or a base. Here is a table in which I have write the names of the indicator, their original colors and how its color changes by reacting with an acid and a base. Okay, यहाँ पे मैंने कुछ इंडिकेटर्स के नाम लिखे हुए हैं, इसमें कुछ जो है नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और कुछ जो है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी हैं. तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द फेनोप्थलीन. ओके, फिनोप्थलीन एक इंडिकेटर है जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है लैबोरेटरीज में. तो फिनोप्थलीन का जो नेचुरल कलर होता है वो है कलरलेस, इट डज नॉट हैव अ कलर. ओके, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड इट्स कलर डज नॉट चेंज. ओके, तो इसका कलर जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट होने पर चेंज नहीं होता है, बट व्हेन इट रिएक्ट्स विद अ बेस इट कलर चेंजेस टू पिंक, फ्रॉम कलरलेस टू पिंक. ओके, नाउ मैथिल ऑरेंज. तो मैथिल ऑरेंज एज इट्स नेम इंडिकेट्स इट इज ऑरेंज इन कलर इन इट्स नेचुरल फॉर्म. ओके, ये जो है ऑरेंज कलर का होता है न्यूट्रली. उसके बाद जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑरेंज से हो जाता है रेड और यू शुड से डार्क पिंक. एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद द बेस इट्स कलर टर्न इनटू येलो. ओके, तो ये जो है येलो कलर का हो जाता है. सिमिलरली जूस ऑफ रेड रोज, गुलाब जल आपके घर में होता होगा, गुलाब जल इजीली अवेलेबल होता है. ओके, तो गुलाब जल जो है बेसिकली आपने देखा है कलरलेस या पिंक, हल्का स्लाइट पिंकिश कलर का होता है. जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इट्स कलरलेस और पिंकिश कलर टर्न्स इनटू रेड एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद द बेस इट्स कलर टर्न्स इनटू येलो. ओके, नाउ हिबिस्कस पेटल्स जूस और वी कैन राइट इट एज हिबिस्कस पेटल्स जूस. जब आप गुड़हल का जूस लेंगे या फिर आप एक और प्रैक्टिकल कर सकते हैं, गुड़हल का जो पत्ता है या पीटल्स होते हैं उसको आप एक पेपर में, व्हाइट पेपर में आप उसको रब कीजिए. रब करने के बाद उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. ओके, उसके 3 टुकड़े काट सकते हैं. तीनों टुकड़ों को, सबसे पहले टुकड़े को आप क्या करें, लेमन जूस में डिप कर दें. सेकेंड वाला जो टुकड़ा होगा उसको आप सोप सोल्यूशन में डिप कर दें और थर्ड वाले को आप नॉर्मल वाटर जो होगा या आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं. तो आप देखेंगे कि जो नॉर्मल जो कलर है उसका पिंक, ऑलमोस्ट पिंकिश कलर का होगा. जब आप उसको डिप करते हैं किसमें, जब आप उसको लेमन जूस में आप डिप करते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है. और जब आप उसको सोप सोल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका जो कलर है वो ब्लूइश हो जाता है या ग्रीनिश ब्लू जिसको बोलते हैं. इस तरीके की कलर वो में चेंज हो जाता है. सो दिस इज द प्रैक्टिकल ऑफ हिबिस्कस पेटल्स जूस. नाउ द मोस्ट कॉमन थिंग विच वी एक्चुअली यूज टू फाइंड आउट वेदर समथिंग इज एन एसिड और अ बेस. किसी भी चीज को एसिड या बेस के फॉर्म में जानने के लिए जो सबसे कॉमन चीज हम यूज करते हैं लैब्स में वो है एक लिटमस पेपर, है ना. एंड वी ऑल नो दैट कि लिटमस पेपर जो है जब एसिड के साथ ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हैं तो ब्लू टर्न्स इनटू रेड. ओके, एसिड, अब इसको याद कैसे रखना है. एसिड जो है खतरनाक चीज है. किसी के चेहरे पे आपने बहुत बार एग्जाम्पल सुना होगा, बहुत बार आता है ऐसा बहुत कि किसी के चेहरे पे किसी ने एसिड फेंक दिया. अब एसिड फेंकने के बाद किसी का चेहरा जो है जल जाता है. जल इट इंडिकेट्स द रेडनेस ऑफ द स्किन, कि मतलब किसी के ऊपर फेंकोगे गुस्से से लाल आग बबूला और जो स्किन का कलर है जो एक्चुअली में अगर स्किन बर्न हो जाती है तो रेड हो जाएगा. तो दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. ओके, एंड दिस इज द क्रूअल थिंग विच इज सोसाइटी इज फेसिंग, है ना, एंड इट शुड बी स्टॉप्ड. ओके, बट जस्ट टू रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर विद दिस एग्जाम्पल. ओके, तो लिटमस पेपर जो होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर है, जब आप उसको एसिड में डिप करोगे वो क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है. जब आप रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे किसमें, बेस में, तो वो कलर जो रेड से हो जाता है ब्लू. बट व्हाट इज द कलर ऑफ अ न्यूट्रल लिटमस पेपर. ओके, एक न्यूट्रल जो है लिटमस पेपर का कलर क्या होता है, इट इज पर्पल इन कलर. ओके, एंड इट हैव द सेम चेंजेस विद एन एसिड एंड बेस. जब इसको आप एसिड में डिप करोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा. जब आप इसको बेस में डिप करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा. ओके, so all these are color indicators. Color indicators means those indicator which changes its color by reacting with acids and base. Okay, जो कलर चेंज करते हैं, जो अपना रंग बदलते हैं एसिड और अम्ल और क्षार के साथ. एंड देयर इज द नेक्स्ट थिंग विच इज गिवन इन योर बुक, द एक्टिविटी नंबर 2 विच इज olfactory indicators given as onion. ओके, अब दूसरी एक्टिविटी जो आपकी बुक में दी है, इन विच यू हैव टू चॉप some onions, okay,
and those onions, what do you have to do? You have to react those onion chops with acids and base, and you have to actually see what changes it brings. Okay, आपको क्या करना है, ऑनियन लेना है, आप ऑनियन का जूस ले लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। ऑनियन के जूस को आपको रिएक्ट कराना है एसिड और बेस के साथ। तो एसिड के फॉर्म में आप ले सकते हैं लेमन जूस। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्याज का रस लेके उसमें थोड़ा सा लेमन जूस मिलाइए। इट में कि आप दोनों को इक्वल अमाउंट ले सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू, दूसरा जो है ऑनियन का जूस लेके आप उसमें थोड़ा सा सोप सोल्यूशन मिलाइए और देखिए कि दोनों में क्या चेंजेस आते हैं। ओके, आपको पता है कि जो प्याज की स्मेल है, जो ऑनियन का जो ऑर्डर होता है वो किस तरीके का होता है। ओके, तो एक तीखी गंध जो होती है, ओके, जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो देयर इज नो चेंज इन द ऑर्डर ऑफ ऑनियन। ऑनियन के जो स्मेल है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ओके, बट व्हेन इट रिएक्ट्स विद द बेस, जब सोप सॉल्यूशन को आप क्या करेंगे, डालेंगे ऑनियन के साथ, तो इट्स लूजेस इट्स ऑर्डर, ये अपना स्मेल जो है वो खो देता है। ओके, सो दिस इज हाउ इट इंडिकेट्स दैट समथिंग इज एन एसिड और अ बेस। ओके, प्याज में जब आप बेस को डालेंगे तो वो अपना जो स्मेल है वो खो देता है, और वैसे ही जब प्याज में आप एसिड को डालेंगे तो प्याज का जो स्पेसिफिक ऑर्डर है वो एज इट इज रहता है। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन आफ्टर वी विल मूव अहेड। ओके, so by finishing that topic, our next topic is chemical properties of acids and bases. Okay, इस पोर्शन में हम समझेंगे कि अम्ल और क्षार किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देती हैं। Now about this I will briefly explain you how the reaction occurs of acids and base with different chemicals. Okay, so there are a few points. The first point is the reaction of acids with metals. The reaction of acids with metal. So before looking towards the reaction, would you please tell me what metals are? You know about the acid, what acids are. We have already studied about the acids, that acids are something which gives H plus ion in a solution. But what about metals? What are the metals? If we know about the acids, and we need to know about the metals also, which acid is going to react with. Okay, so what are metals? Anything which has the property of sonority, ductility, malleability. Okay, so such kind of substances are known as metals. Okay, so many examples are there in your house and everywhere. Metals are everywhere, like iron, like silver, like gold. All these are the examples of metal. Okay, so how an acid reacts with metal? So there is a fundamental idea that when an acid reacts with a metal, it gives salt and hydrogen gas. Okay, so it is very clear that whenever an acid will be reacting with a metal, it will result giving salt and hydrogen gas. Okay, there is an example like HCl is an acid. When HCl reacts with sodium, sodium is a metal, okay, of group 1. Now sodium reacts with HCl, which is an acid. It gives sodium chloride and hydrogen gas. I hope it is very clear to you. For the Hindi mediums, now जब अम्ल जो है किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्ल और धातु की अभिक्रिया से लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। टू बी वेरी क्लियर, एक ही फंडा है, काफी आसान है और काफी क्लियर है। सी, अम्ल और धातु की अभिक्रिया से बनेगा लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ है HCl का सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। ओके, सो इज इट क्लियर? एंड आफ्टर दैट देयर इज अ रिएक्शन और देयर इज एन एक्टिविटी इन योर SCRT बुक, ओके, इन विच यू हैव आस्क्ड टू you have asked to do a practical in which you have to take a test tube,
Okay, you have to put some zinc granulates in it, and then after you have to add some HCl in it. Okay, drop by drop, and then after you have to find out which gas is released from the test tube, and to find out which gas is releasing, you have to put a matchstick, a burning matchstick in front of the mouth of the test tube. If the matchstick starts burning vigorously, it means it is hydrogen gas. ओके तो प्रैक्टिकल क्या करना है आपको परफॉर्म, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें आपको जिंक धातु के कुछ टुकड़े लेकर उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बूंद बूंद करके डालना है, और उसके बाद इसमें से जो गैस निकलेगी उसका आपको परीक्षण करना है कि कौन सी गैस निकल रही है। और इस परीक्षण के लिए आपको क्या करना है, एक जलती हुई माचिस की तीली टेस्ट ट्यूब के मुंह के सामने लेकर आना है। अगर जो माचिस की तीली है जोर से जलने लगी, इसका मतलब है कि यह हाइड्रोजन गैस है, बिकॉज द हाइड्रोजन गैस हैज अ टेंडेंसी टू हेल्प इन बर्निंग. इट डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट इट हेल्प्स इन बर्निंग. ओके, अनलाइक द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन जो है किसी चीज के जलने में सहायक होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, वो जलने में सहायक नहीं होता पर खुद जलता है. ओके, सो now what, okay, so this is the reaction of acid with the metals, and how bases react with metals is some alkalis react with metals to form a salt with the evolution of hydrogen gas. So base also give the same reaction, okay, but not all the bases react with all the metals. Okay, like sodium hydroxide reacts with zinc to give sodium zincate plus hydrogen gas. It is the same reaction. Sodium zincate is a salt and hydrogen is a gas. So here a base is reacting with a metal which is zinc, resulting in sodium zincate and hydrogen gas. So I hope it is very clear to you. The next point is reaction with metals, carbonates and bicarbonates. Okay, so how an acid reacts with metal carbonates and metal bicarbonates. Now, acid when reacts with metal carbonates and bicarbonate gives salt, water and carbon dioxide. So this is the basic reaction an acid gives with metal carbonates and bicarbonates. Okay, so here is an example of an acid HCl reacting with sodium bicarbonate. This is the formula of sodium bicarbonate, resulting in sodium chloride which is a salt, H2O which is water and carbon dioxide. So salt, water and carbon dioxide. Is it clear? See, acid, metal, this is bicarbonate. We can also keep it as sodium carbonate, Na2CO3. So if we will write it as Na2CO3, and then we need to balance the equation also. So 2 sodium will react with 2 chlorine. So here we have to put 2 amount of HCl. Okay, so it will be 2 NaCl and then after H2O, 2 NaCl, H2O and CO2. So in this way this reaction will be performed. The next reaction is the reaction of bases with non-metal oxide. Okay, how a base reacts with a non-metal oxide. But before moving towards this reaction, there will be a question will come in your mind that only acid reaction is been given here with metal carbonates and bicarbonates. Why not bases reaction with metal carbonates and metal bicarbonates? Okay, so the answer of this question is acids does not react with acid. Similarly, the bases does not react with bases. Okay, there will be a case that a very high potential acids which reacts with very weak acids, okay, which ultimately a base, which ultimately will be a base. So here
जब अम्ल फॉर हिंदी मीडियम्स, जब अम्ल मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ओके, परंतु क्षार जो है वो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्बोनेट्स हैं वो खुद क्षार हैं, तो क्षार का रिएक्शन क्षार के साथ पॉसिबल नहीं है। हाँ, बट एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, सो यू मे फाइंड द एक्सेप्शंस एंड आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं उसको। नाउ द थर्ड रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। सो व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल ऑक्साइड इट रिजल्ट्स इन salt and water. So this is a similar reaction like when an acid reacts with a base, it gives salt and water. So similar reaction it is a base which is NaOH sodium hydroxide reacting with CO2, a non-metal oxide. And when a non-metal reacts with oxygen, it gives non-metal oxides. So carbon is a non-metal here, reacting with oxygen it gives carbon dioxide. So it is a non-metal oxide. So when a non-metal oxide reacts with a base, it gives what? Salt, sodium carbonate and water. So I hope it is clear to you all कि जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब क्षार किसी क्या करेगा, नॉन मेटल अधातु ऑक्साइड के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो उससे क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। द लास्ट रिएक्शन इज reaction of acids with bases. This is the fourth reaction and very useful one. This reaction is also known as neutralization reaction. Okay, when an acid reacts with base, it gives salt plus water. Okay, just like take an acid, any acid, HCl plus let's take NaOH, both will be aqueous. Okay, so what will be the result product? The result product will be NaCl and H2O. NaCl plus H2O. This will be aqueous and this is a liquid. Here aqueous means anything which is soluble in water. Okay, कोई भी चीज जो जल में घुली हुई है वो एक्वस कहलाती है। ओके, जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन कहा जाता है उसको। और L इंडिकेट्स द लिक्विड, S इंडिकेट्स द सॉलिड, G इंडिकेट्स द गैसियस फेज। ओके, तो कहीं भी अगर एक AQ लिखा है उसका मतलब है जलीय विलयन, कहीं पे L लिखा है उसका मतलब है खुद जल, G लिखा हुआ है उसका मतलब होता है गैस, S लिखा हुआ है उसका मतलब होता है ठोस। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 4 टाइप के रिएक्शन थे। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब क्या देता है? ओके, एसिड्स जब मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या देते हैं? ओके, जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तब रिजल्ट प्रोडक्ट क्या होता है? और अल्टीमेटली एट द लास्ट व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस, जब अम्ल क्षार की अभिक्रिया होती है तब क्या प्रोडक्ट बनते हैं? तब लवण और जल बनता है। तो दीज आर द बेसिक रिएक्शंस विच वी नीड टू कंसिडर नाउ। अब आपको ये सारी रिएक्शंस जो हैं अच्छे से याद करनी है क्योंकि ये आपको हमेशा काम आएगा। आपके 10th का सिलेबस है, ये 11th में भी आपको काम आना है, फिर 12th में भी काम आना है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट अलॉट। सो वट एवर वी हैव स्टडीड टूडे फ्रॉम इंडिकेटर्स टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, यू हैव टू डू इट टूडे। आज के आज सारी चीजें कंप्लीट करिए। ओके, एंड टिल देन बाय, थैंक यू।